بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ حنا اور عدیل کا پڑھائی میں بہت ہی کم دل لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سست اور کمزور بچے تھے، مگر ان کا ذہن دوسری سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ ان کے دادا دل نواز پورے علاقے کے بابا جی تھے۔ وہ اپنی اچھی عادت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ وہ ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ پرانا دور تھا جب انٹرنیٹ اور ٹی وی سے بچے بالکل ناواقف ہوا کرتے تھے۔ شام ہوتے ہی وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر کھیل کود میں مگن ہو جاتے۔ پیار اور محبت کا زمانہ تھا۔ بچوں پر بھی اس بات کا بہت زیادہ اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دن ان کے لیے بہت خاص ہوتا۔ وہ اپنا ہر دن عید کی طرح انجوائے کر رہے تھے۔ اکثر بچے جب کھیل کر تھک جاتے تو بابا جی کے پاس جمع ہو جاتے اور جن اور پریوں کی کہانیاں سننے کی ضد کرنے لگتے۔ انہیں یہ سب پھول بہت پسند تھے، اس لیے وہ کبھی انہیں مایوس نہیں کرتے تھے اور اکثر انہیں مزے مزے کے قصے کہانیاں سناتے تھے۔ ان کی کہانیاں زیادہ تر ان کی اپنی زندگی کے تجربات اور واقعات پر مبنی ہوتی، جس میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا سبق ضرور پوشیدہ ہوتا۔ وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے بچے کا وہ قیمتی وقت بنا دیتے اور بچے جب وہاں سے اٹھ کر جاتے تو وہ زندگی کا ایک سبق سیکھ چکے ہوتے تھے۔ ان کا بچپن پاکستان کے علاقوں میں گزرا تھا، جہاں پر تقسیم ہند کے بعد لوگوں نے جب جنگلاتی اور میدانی علاقوں میں بھی پہلی بار رہائش اختیار کرنے کے بعد مختلف جناتی واقعات کا سامنا کیا تھا، جن واقعات کو سوچ کر آج بھی بابا جی اپنے دل میں خوف کی ایک لہر محسوس کرتے تھے۔ بچے جب ان جنات کے واقعات کے سننے کی ضد کرتے تو وہ ہمیشہ چیدہ واقعات ہی انہیں سنایا کرتے، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی ڈراؤنے واقعات کا سامنا کر چکے تھے۔ ایک دن ہی حنا اسکول سے آئی تو وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس کی امی نے اسے کھانا دیا تو وہ سو گئی۔ وہ شام کے وقت اٹھی اور اپنے اسکول کا کام کرنے کے بعد اپنی امی کے شام کا کھانا بنانے میں ہاتھ بٹانے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ندا نے بیٹی سے کہا کہ باہر جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ حنا نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی خوبصورت سے حنا کی عمر کی لڑکی ہاتھ میں کھیر کا باؤل لیے کھڑی تھی۔ حنا اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ بیٹا، پیچھے سے ندا نے آ کر کہا تو وہ بچی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئی اور باؤل ندا کو پکڑا دیا اور ساتھ ہی بتایا کہ ہم آپ کے برابر والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ آج میری امی نے کھیر بنائی تو کہا کہ آپ کے گھر دے آؤں اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی کروا دوں۔ یہ سن کر ندا مسکرائی اور بولی، بہت شکریہ بیٹے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مہوش ہے اور میں کلاس 3 میں پڑھتی ہوں۔ اس نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور وہاں سے چلی گئی۔ ماما، یہ لڑکی کتنی پیاری تھی۔ اس کے جانے کے بعد حنا نے ماں سے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا تو ندا نے بھی فوراً کہا، ہاں مہوش واقعی بہت خوبصورت بچی ہے اور اس کی خوبصورت سی کانچ جیسی آنکھیں دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ وہ دونوں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کام نپٹانے لگی۔ کھیر بہت لذیذ تھی، عدیل اور بابا کو بھی بہت پسند آئی۔ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ نئے پڑوسیوں کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ندا، تم ایسا کرو کہ کل دوپہر کے کھانے پر انہیں گھر بلا لو۔ انہوں نے تعلقات بڑھانے میں پہل کی تو ہم بھی اچھا رد عمل پیش کریں گے۔ حنا کے پاپا طاہر نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو ندا نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی انہیں کھانے پر بلا لیتی ہوں۔ اگلے دن اتوار تھا، اسی لیے حنا بھی گھر پر ہی تھی۔ اس نے گھر کے کاموں میں ماں کی مدد کروائی اور دوپہر تک سب کھانا تیار ہو چکا تھا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حنا نے دوڑ کر جا کر دروازہ کھولا تو وہاں مہوش اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ندا مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے دوڑ کر کچن سے نکلی اور باری باری دونوں سے ملنے لگی اور ساتھ ہی شکوہ بھی کر ڈالا، مہوش بیٹی، آپ اپنے بابا کو ساتھ کیوں نہیں لائی؟ ندا کا اتنا پوچھنا تھا کہ مہوش کا چہرہ لال ہو گیا اور اس کی ماں جس کا نام مہمونہ تھا اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ندا کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے غلط سوال پوچھ لیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ندا بول پڑی، 2 سال پہلے مہوش کے پاپا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم دونوں اکیلی رہتی ہیں۔ یہ سن کر ندا نے فوراً معذرت کی اور بولی، معاف کیجیے مہمونہ بہن، مجھے اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سوال آپ کو زندگی کا اتنا بڑا دکھ یاد کروا سکتا ہے۔ مہمونہ فوراً بولی،
नहीं, माजरत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है निदा बहन। ज़िंदगी की हकीकतों से किस तरह मुंह मोड़ा जा सकता है भला? वक्ती तौर पर इंसान भूल भी जाए तो कुछ खसारे ऐसे होते हैं जिनके ज़ख्म ताउम्र नहीं भरते। मैमूना की इस बात पर निदा लाजवाब हो गई और उन्हें बहुत ही प्यार से ड्राइंग रूम में बिठाया। बहुत ही दोस्ताना माहौल बना हुआ था और जल्दी मैमूना और निदा आपस में गहरी दोस्त बन गई, जबकि महविश और हिना की भी दोस्ती हो गई थी। मैमूना और निदा अपने ससुराल और मैके के किस्से एक दूसरे को सुना रही थी। महविश के साथ खेलने के लिए हिना ने अपने सारे खिलौने निकाल लाए, जिसे देखकर महविश बहुत खुश हुई और खुशी खुशी उसके साथ खेलने लगी। कुछ ही देर बाद बाबा भी आ गए। निदा ने बाबा से मैमूना को मिलाया तो उन्होंने मैमूना के सर पर शफकत भरा हाथ रखा। उन्होंने उसके बारे में पूछा तो मैमूना ने बताया कि इसके माँ बाप तो इसकी शादी से पहले ही 1 साल वफात पा चुके हैं। बहन भाई शादीशुदा सब अपनी ज़िंदगी में मगन थे। उसकी मंगनी माँ बाप की ज़िंदगी में ही उसकी खाला के घर हो चुकी थी। उसकी खाला, जिसके बड़े 2 बेटे बैरून मुल्क मुकीम थे, जल्द छोटे बेटे की शादी करने के बाद बाहर बड़े बेटों के घर जाने का इरादा रखती थी। लिहाजा खाला ने जब उसके बड़े बहन और भाई से बात की तो उन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। सोनू ने जल्दी शादी की तारीख रख दी और इस तरह मैमूना की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हो गया, जो जिम्मेदारी और मुश्किलात से भरपूर दौर था। असद अच्छा और ख्याल रखने वाला शोहर था, मगर अच्छी तालीम ना होने की वजह से वो करियर की दौड़ में अपने भाइयों से बहुत पीछे रह गया। उसकी एक आदत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो कभी भी तरक्की नहीं कर सका। वो आदत ये थी कि वो कोई काम टिक कर नहीं करता था। उसे कभी कारोबार करने की सोच थी तो कभी नौकरी की तरफ दौड़ना पड़ता। चंद माह वक्त बर्बाद करके फिर उसे कोई नया बिजनेस सूझ जाता। जो थोड़ी बहुत रकम जमा होती वो वहाँ लगा देता और फिर बहुत जल्दी उससे उकता भी जाता और कोई काम करने का सोचने लगता। मैमूना ने उसे बहुत समझाया कि रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखना छोड़ दो, बल्कि जो काम शुरू करो उसको उसके अंजाम तक पहुँचाओ ताकि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। मगर उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। मैमूना बेचारी क्या करती? एक सास थी जो परदेश में जा बैठी थी, जिससे फ़ोन करके परेशान करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और ना ही उसने ऐसा कोई कदम उठाया था जिससे माँ बेटे के दरमियान कभी इख्तलाफात पैदा होते। और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि दूर बैठी सास भला उसके लिए क्या कर सकती थी। मैके में कोई ऐसा नहीं था जिससे दिल का हाल बयान करके दिल को हल्का कर लेती, क्योंकि सब बहन भाई उससे बड़े थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ खुशहाल थे। वो भुला चुके थे कि माँ बाप ने अपनी एक छोटी सी औलाद भी दुनिया में छोड़ी है, जिससे उनकी रहनुमाई की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। मैमूना अपने हालात और शोहर की तबीयत से समझौता करके ज़िंदगी गुजारने लगी। किस्मत की हेरा फेरी शुरू हो जाए तो ज़िंदगी न जाने किस मोड़ पर होती है। यही कुछ मैमूना के साथ भी हुआ था। जब उसकी गोद में नन्ही और प्यारी सी महविश आई तो उसको ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब एक वजूद दुनिया में ऐसा आ चुका है जो उसके दर्द को, उसकी खुशी को समझ सकेगा। बेटी को पाकर असद भी बहुत खुश था। उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब वो एक ही काम में दिल लगाएगा और उसी में तरक्की करेगा ताकि अपनी बेटी के मुस्तकबिल को बेहतरीन बना सके। जब मैमूना को उसका ये इरादा मालूम हुआ तो वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि उसकी दुआएं आखिरकार रंग ले आई हैं। क्या फिर बेटी के कदम ऐसे मुबारक साबित हुए कि जिसने बाप की फितरत और सोच ही बदल कर रख दी। चाहे जो भी था, मगर वो बहुत खुश थी। महविश की पैदाइश पर सास ने फ़ोन पर ही मुबारकबाद देकर बात ख़त्म कर दी। बहन भाई भी आकर मामूली से तहफ़ देकर दुनियादारी की ये रस्म पूरी कर गए थे। वो इसी में खुश थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ज़्यादा तवक्कुआत से इंसान को दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। सो अपनी तवक्कुआत की डोर को समेट कर रखना चाहिए, वरना इंसान उससे उलझकर खुद ही बुरा गिर पड़ता है और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। खैर, ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी कि एक दिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मैमूना और महविश की ज़िंदगी को अंधेरों की लपेट में हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो भी एक मामूल के मुताबिक ही दिन था जब असद रोज़ की तरह सुबह के वक्त काम पर जाने के लिए निकला। मैमूना महविश के उठने से पहले बर्तन वगैरह समेट रही थी ताकि महविश के जाने के बाद वो पूरा टाइम बच्ची को दे सके। अभी वो बर्तन धोकर किचन से निकली थी कि ज़ोर से दरवाज़ा पीटा गया।
اس نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو سامنے اسد کو 4 کندھوں پر لے آیا گیا۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اسد روڈ پار کرتے ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ہسپتال جانے کی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔ علاقہ مکین اسے اچھی طرح جانتے تھے، سو اسے گھر لے آئے۔ میمونہ کے لیے یہ حادثہ اتنا غیر متوقع اور خوفناک تھا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ کب اس کی تدفین کی گئی ہے، اور 3-4 دن تک محلے والوں نے کس طرح اس کی ننھی پری کو سنبھالا۔ اسے ہوش آیا تو زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اسے اب اپنی پہاڑ سے زندگی کا بوجھ اکیلے ہی اٹھانا تھا۔ ہمدردی کرنے کے لیے لاکھوں لوگ موجود تھے، لیکن ساتھ نبھانے والا منو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ جوانی میں ہی بیوگی کا دکھ دیکھنا کتنا کٹھن تھا۔ میمونہ کا دل اس دکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ زندہ درگور سی ہو گئی، مگر زندگی کی ضروریات بھی پوری کرنی تھی، سو وہ ایک بنگلے میں کام کرنے لگی اور کچھ پیسے کما کر گزر بسر کرنے لگی۔ چھوٹی بچی کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور محنت مشقت کو اپنا واحد ہتھیار بنا لیا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کسی کی سپورٹ نہ ہو تو صرف اپنی محنت سے ہی انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس موڑ پر بھی قسمت نے اسے فریب دیا اور جس جگہ وہ نوکری کر رہی تھی وہ لوگ سال بھر بعد ہی ایک دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے اور مجبوراً اسے دوسری جگہ کام ڈھونڈنا پڑا۔ اپنے ایک جاننے والی کے توسط سے اسے ایک بنگلے میں صفائی کا موقع مل گیا۔ یہ ماریا کا بنگلہ تھا، جو جادو اور مختلف قسم کے عملیات میں ماہر تھی۔ اسی وجہ سے وہاں عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ میمونہ کے پاس اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ یہ کام کرنے پر مجبور تھی۔ مگر اس گھر میں کام کرنے کے بعد مہوش کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس بار مہوش کو بخار ہوا تو اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میمونہ نے ہر طرح کی دوا کھلا کر دیکھ لی اور سارے ٹوٹکے آزمائے، مگر بخار تھا کہ مہوش کا پیچھا ہی پکڑ چکا تھا۔ اسے محلے کی ایک بوڑھی عورت نے بتایا کہ اس پر اثرات لگتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ اس کا روحانی علاج کرواؤ۔ یہ سن کر میمونہ سمجھ گئی کہ یہ نہ ہو کہ یہ اثرات ماریا کے بنگلے پر کام کرنے کا ہی نتیجہ ہوں۔ اس نے اسی وقت اس بنگلے پر کام کرنا چھوڑ دیا اور سلائی کڑھائی کرنے لگی۔ وہ غریبوں کا علاقہ تھا، اول تو کوئی کپڑے سلوانے کے لیے آتا ہی نہیں تھا، اور اگر بھولے سے آ جاتا تو اتنی کم اجرت دیتا کہ میمونہ کو کچھ بچت نہ ہوتی۔ ایک روز وہ مہوش کو گھر میں بند کر کے دھاگے وغیرہ لینے کے لیے مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی، جہاں کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے تھے۔ وہ اسی جوڑ توڑ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا چیز خریدے اور کون سی ضرورت کو نظر انداز کرے۔ اسے ایک لڑکی آ کر لپٹ گئی۔ میمونہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، جو کسی زمانے میں اس کے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی۔ میمونہ تو اپنی دوست شبانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ اسے لے کر اپنے گھر آئی۔ شبانہ کے اچھے لباس کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شبانہ اور میمونہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی، مہوش کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ میمونہ نے اسے دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر اس مہوش کو اٹھایا اور گلے سے لگایا۔ وہ دوڑ کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی۔ میمونہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، مگر جیسے آج اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ مہوش کو مصنوعی سانس دیا گیا اور 2 دن بعد اس کی طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹر نے روحانی علاج کا بھی مشورہ دیا۔ شبانہ نے اسے بتایا کہ میرے ماموں دم وغیرہ کرتے ہیں، تم ان سے ایک بار ضرور ملو۔ میمونہ نے شبانہ کے مشورے پر عمل کرنے میں ایک پل کی تاخیر نہیں کی اور اسی دن اس کے ماموں کے پاس چلی گئی، جو پہلی نظر میں ہی مہوش کو دیکھ کر صورتحال کا اچھی طرح سے اندازہ لگا چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مہوش پر جنات کا سایہ ہے، میں ایسا عمل کروں گا جس سے اثرات کافی کم ہو جائیں گے، مگر اس کے ساتھ احتیاط کرنا بھی ضروری ہے۔ میمونہ نے ہر طرح کے احتیاط کرنے کا عہد بھی اسی وقت باندھ لیا۔ 4 سال تک مہوش کا علاج چلا۔ اس کے بعد شبانہ کے ماموں نے کہا کہ تمہیں یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ ان کی یہ ہدایت سن کر جہاں میمونہ پریشان ہوئی، وہیں شبانہ اس کی پریشانی میں برابر کی شریک تھی۔ 1 سال اسی پریشانی میں گزر گیا کہ وہ دوسرے شہر میں جہاں اس کی پہچان بھی نہ ہوگی اور ایک بالکل انجان جگہ پر جا کر اس طرح رہے گی۔ اس دوران مہوش اسکول بھی جانے لگی تھی اور سچ شکر تھا کہ اب غیر معمولی واقعات اس کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی میمونہ نے ہر قدم پر اس کا خیال رکھنا بالکل نہیں چھوڑا۔
शबाना के दूर पार के ससुराली रिश्तेदार जिनसे उसकी अच्छी सलाम दुआ थी, वो इस शहर में रहते थे। शबाना ने उन्हें फ़ोन करके मैमुना की पूरी कहानी सुनाई और कोई घर तलाश करने का कहा, जिसके नतीजे में बड़ी तगो-दू के बाद निदा के घर से बराबर वाला घर मैमुना को मिल गया। शुरू में उसने किसी से भी मोहल्ले में दुआ सलाम नहीं रखी, मगर जब उसे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया कि ये एक अच्छा मोहल्ला है और सभी हमसाए नेक आदात और अतवार के मालिक हैं, तो उसने खीर बनाकर महविश के हाथ सभी घरों में तकसीम की। मैमुना की सारी कहानी जानकर वो हैरान रह गए। निदा ने उसी वक्त मैमुना को गले से लगाया और बोली, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ। कभी ये ख्याल दिल में मत लाना कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर बाबा बोले, हाँ बेटी, निदा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से तुम भी मेरी बेटी हो। तुम मेरे लिए निदा जैसी हो और महविश मेरे नज़दीक मेरी पोती हिना जैसी है। इसीलिए अब जब तुम्हारा जी चाहे तुम यहाँ एक बेटी होने की हैसियत से आ सकती हो। बाबा ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए कहा तो उस अपनायत पर मैमुना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वरना इतना मान और इतनी मोहब्बत कभी किसी को कोई नहीं देता। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करती हूँ और आपको कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। आप लोगों के काम आना मेरे किसी एजाज़ से कम नहीं होगा। मैमुना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, चलो अब मैं खाना लगाती हूँ, ऐसा न हो कि हमारी बातों में खाना ठंडा हो जाए। निदा ने कहा और टेबल सेट करने के लिए उठ खड़ी हुई। खाने के बाद मैमुना और महविश खुशी से अपने घर गई थी। निदा बर्तन धोते हुए सोच रही थी कि दुनिया दुखी दिल के लोगों से भरी पड़ी है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें इतने अच्छे हाल में रखा हुआ है। उस दिन के बाद से महविश ज़्यादातर उन्हीं के घर पाई जाती। उसकी हिना से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैमुना ने उसका दाखिला भी हिना और अदील के स्कूल में करवा दिया था। एक रोज़ बच्चे स्कूल गए हुए थे और बाबा की तबीयत कुछ नासाज थी। वो आराम कर रहे थे, वरना वो उस वक्त अपने किसी न किसी दोस्त से मिलने के लिए गए होते थे। निदा घर का काम कर रही थी। वो बच्चों के आने से पहले घर का पूरा काम ख़त्म करना चाहती थी। इसी कोशिश में जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे। चूल्हे पर बाबा के लिए परहेजी खाना भी पक रहा था, इसीलिए उसी वक्त दरवाज़ा बजा तो निदा सारे काम छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने मैमुना खड़ी थी। वो कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। निदा ने उसे अंदर बुलाया और बिठाकर पानी पिलाने के बाद उसके चेहरे पर फैली परेशानी की वजह पूछी तो वो बोली, मेरी दोस्त शबाना का पिछले महीने एक्सीडेंट हो गया था। उस हादसे के बाद उसकी तबीयत ना संभल सकी। वो मुझसे मिलना चाहती हैं और मुझे मिलने के लिए अपने पास बुला रही है। मुझे वहाँ जाना है। मैमुना के चेहरे से परेशानी टपक रही थी। ठीक है, मगर तुम हौसला रखो और अगर चाहो तो महविश को मेरे पास छोड़कर जा सकती हो। निदा ने खुलूस भरे लहजे में कहा तो मैमुना बोली, तुम कितनी अच्छी दोस्त हो, बल्कि दोस्त नहीं बहन हो। उस दिन मैमुना महविश को समझा बुझाकर निदा और हिना के पास छोड़कर चली गई। महविश जल्द मान गई थी, मगर माँ के जाने की वजह से बहुत अफसरदा थी। उसने रोते हुए अपनी माँ को रुखसत किया। मैमुना के जाने के बाद हिना और निदा के अलावा बाकी सब घर वालों ने भी महविश का बहुत ख्याल रखा और उसे भुलाने की पूरी कोशिश की, मगर जाहिर है माँ तो माँ होती है। माँ के बगैर बच्चे के लिए बहलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे उसके सामने दुनिया की कोई भी चीज़ लाकर रख दी जाए, मगर माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा महविश भी माँ के जाने के बाद काफ़ी उदास थी और दिन गिन गिन कर माँ का इंतज़ार कर रही थी। मैमुना इस रात के डर से महविश को शहर में दोबारा नहीं लेकर गई, मगर ये भूल गई कि जो मुसीबत नसीब में लिखी है वो ज़रूर रोनमा होती है। उसके साथ भी यही हुआ। शायद शबाना अपनी दोस्त से मिलने के लिए ही अपनी गिनी चुनी सांसें पूरी कर रही थी। मैमुना के वहाँ पहुँचने के चौथे दिन ही इस दुनिया से वो मुंह मोड़ गई। मैमुना उसके जाने से बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो उसकी दोस्त नहीं मौसन भी थी जिसने कदम कदम पर उसका साथ दिया। खैर, वो अपने बहन भाइयों से मिलकर जल्द ही वापस आ गई, जहाँ महविश शिद्दत से माँ की मुंतज़िर थी। माँ को देखते ही उसके चेहरे पर रौनक दौड़ गई, ये जाने बगैर कि माँ के दिल पर क्या क़यामत बरपा हुई है। वो उससे लिपट गई थी और मैमुना ने उसे अपने वजूद में समो लिया। सब्र को उसने अपना ओढ़ना बिछूना बना लिया था। बाबा और निदा ने उसे तसल्ली दी तो वो बस खामोश रही। उसी रात बहुत अजीब वाक़या पेश आया।
हिना और अदील काम लिख रहे थे। कल उनका एक ज़रूरी टेस्ट था जिसकी वजह से वो तैयारी के लिए जाग रहे थे। ज़ोर ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अदील दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर बाबा ने उसको बिठा दिया और ख़ुद दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़े। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मैमूना परेशान हाल खड़ी थी। उसके मुंह से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे। बाबा, वो बमुश्किल बोली तो बाबा ने फ़ौरन कहा, क्या कहना चाह रही हो मैमूना बेटी, और महविश कहाँ है? उन्होंने पूछा तो मैमूना ने एक हाथ से उसकी तरफ इशारा किया और बहुत मुश्किल से बोली, महविश उधर चली गई है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी इससे आगे। वो बेजान सी होकर लुढ़क गई तो निदा ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया, जबकि बाबा सिमत दौड़ पड़े जिस तरफ मैमूना इशारा कर रही थी। वो अंधाधुंध दौड़ते चले जा रहे थे मगर दूर दूर तक महविश का नामो निशान भी नहीं था। उन्हें अंधेरे में भागते हुए न तो किसी ठोकर की परवाह थी और न ही उस सुनसान रात की जिसके अंधेरे चारों तरफ फैले हुए थे। उन्हें परवाह थी तो सिर्फ महविश की जो उस काली स्याह रात में न जाने कहाँ निकल गई थी। वो दौड़ते हुए एक मैदानी इलाके में दाखिल हुए जहाँ उन्हें दूर एक बच्चे की हल्के से झलक नजर आ रही थी। महविश, महविश, उन्होंने पुकारा तो उस बच्ची ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें अंधेरे में चमकी। उसकी नीली आंखों की चमक देखकर बाबा को अंदाजा हो गया कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि महविश ही है। वो अंधेरे में दौड़ती चली जा रही थी। रुक जाओ महविश, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। बाबा ने पीछे से तेज आवाज में कहा तो वह ऐसी हो गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो शायद सोचने समझने की सलाहियत से उस वक्त महरूम हो चुकी थी। यही वजह थी कि बाबा की कोई भी आवाज़ उसके ऊपर असर नहीं कर रही थी, कोई बात उसकी अक्ल में नहीं समा रही थी। बाबा दौड़ते दौड़ते थकने लगे थे। उन्हें अपनी टांगें बेजान होती महसूस हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएंगे। महविश दौड़ते हुए एक जगह पर गिर पड़ी। बाबा ने जब ये देखा तो शुक्र किया कि चलो वो किसी जगह रुकी तो सही, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि वो किसी के कदमों में गिरी हुई थी। बाबा ने नज़र उठाकर देखा तो वो एक दराज कद और लंबा चौड़ा जिन था जो महविश को अपने कदमों में गिरा देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसने झुककर महविश को एक हाथ से ऐसे उठाया जैसे रुई उठाई हो। ये देखकर बाबा गुस्से से बोले, छोड़ दो इस बच्ची को, यहीं छोड़ दो। ये सुनकर वो दियो का मत लंबा चौड़ा जिन हा हा करके हंसने लगा और बोला, ये इतनी दूर से दौड़कर इसलिए नहीं आई कि मैं इसको छोड़ दूं। ए बूढ़े शख्स, ये हमारी दुनिया है। इस दुनिया से अभी और इसी वक्त निकल जाओ वरना अंजाम के जिम्मेदार खुद होगे। उसने बाबा को धमकी दी तो उन्हें शदीद गुस्सा आया। वो अच्छा सबक सिखाना चाहता है मगर उस वक्त उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह उसे मजा चखाएं। वो अच्छी तरह जानते थे कि जिन्नात का कानून इंसानों के कानून से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा उन्होंने सोचा कि मेरी कोई भी कार्रवाई उस लंबे चौड़े भूत का क्या बिगाड़ सकती है भला। इसको सबक सिखाने और महविश को तहवील में लेने के लिए मुझे इस इलाके के सरदार से बात करनी चाहिए। ये सोचकर बाबा वहाँ से आगे चल पड़े। उस जगह के सरदार को ढूंढने लगे मगर वहाँ तो दूर दूर तक किसी रोशनी का नामो निशान नहीं था। इसके बावजूद बाबा ने हिम्मत नहीं हारी और महविश की खातिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गए। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर एक आग का अलाव रोशन दिखाई दिया। ये देखकर बाबा के दिल में एक उम्मीद सी बंधी और वो उसी जानिब चलने लगे। अभी वहाँ से थोड़ा दूर ही थी कि उन्हें एक हंसती हुई आवाज़ सुनाई दी, मुझे अपनी सरजमीन पर इंसान की महक महसूस हो रही है। हमारी दुनिया पर किसी इंसान ने क्यों कदम रखा है? अगर इंसान हमें अपनी दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी सरजमीन पर कदम रखे, वो भी हमसे पूछे बगैर? आखिर ये जुर्रत किसने की है? सरदार का इश्ताल के मारे बुरा हाल था। आसपास मौजूद छोटे जिन्नात ने भी बड़े सरदार की हाँ में हाँ मिलाई। वो बाहिम्मत इंसान मैं हूँ। बाबा ने उनके नज़दीक पहुंचकर तेज आवाज में कहा तो सभी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। एक बूढ़ा शख्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दुनिया में कदम रखने की? उसने गुस्से से कहा तो बाबा ने जवाब में उसे पूरी कहानी सुना दी, जिसे सुनकर सरदार जिन के चेहरे पर शर्मिंदगी फैल गई और बोले, हम शर्मिंदा हैं और आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमारे एक शरीर जिन ने आपकी पोती महविश को अपने जादू के जोर पर यहाँ बुला लिया
आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इसे इसके किए की सज़ा मिलकर रहेगी। आप पूरे इज्जत और एहतराम से महविश को लेकर यहाँ से रुखसत होंगे। ये कहकर सरदार ने बाबा को बहुत इज्जत और एहतराम से सोफे पर बिठाया। 2 जिन्नात को भेजकर मन्नान को बुलाया। मन्नान जो ये सोचकर खुश था कि अच्छा हुआ इस बूढ़े शख्स से जान छूटी जो महविश के पीछे जिन्नात की दुनिया में चला आया था। जब उसे 2 जिन्नात घसीट कर अपने सरदार के सामने ले गए तो वो डर के मारे थर थर कांप रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि ये इंसानी नहीं बल्कि जिन्नाती दुनिया है, जहाँ हर एक को कानून के मुताबिक सज़ा मिलती है, चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर। ए बदबख्त और शरीर जिन, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मासूम बच्ची को जादू के जोर पर इस दुनिया में बुलाने की? सरदार जी ने चिल्लाकर कहा तो वो हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो सरदार जिन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर मामला इसी दुनिया तक महदूद होता तो तुझे ज़रूर माफ़ी मिल जाती, मगर तेरे इस अमल से दूसरे जिन्नात भी इंसानों की नज़र में बुरे बन जाएंगे। हमारी नेक नामी को बदनामी में बदलने के लिए तुझे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ये सुनकर मन्नान नामी वो जिन धाड़े मारकर रोने लगा, मगर उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि किसी को उस पर तरस नहीं आया। महविश को पूरे इज्जत और एहतराम से बाबा की गोद में दिया गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी गहरी नींद में खोई और उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बाबा ने उसकी सांसें चेक की तो उनके दिल को इत्मीनान मिला। बच्ची बिल्कुल ठीक है, ये आपकी दुनिया में वापस जाकर नींद से बेदार हो जाएगी। यहाँ का ऑक्सीजन बच्चों के लिए सेहत बख्श नहीं है, यही वजह है कि ये इस वक्त इस जगह से नहीं जा सकती। सरदार जिन ने बाबा को परेशान देखा तो वजाहत पेश की। दूसरी तरफ घर में महमूना का बुरा हाल था। निदा उसका हाथ मुसलसल थामे बैठी थी और उसे तसल्ली दिलासे देने के साथ वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर दम भी कर रही थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद भी कोसों दूर थी। हिना और अदील टस्ट भूलकर महविश के लिए फिक्रमंद से बैठे दुआ कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द वापस लौट आए। उनके पापा बिजनेस की एक मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर गए थे। महमूना का कहना था कि रात के वक्त वो जल्दी सो गई थी। उसकी आंख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो महविश की जगह खाली पड़ी थी। वो गली का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि ये ख्वाब है या हकीकत। जब उसकी आवाज़ बहाल हुए तो वो जल्दी से महविश के पीछे गए, लेकिन वो पूरी गली पार करके आगे निकल चुकी थी। महमूना को कुछ समझ नहीं आया कि वो उस वक्त मदद के लिए किसको पुकारे, चीखो पुकार करे या फिर उसके पीछे दौड़े। उन्हीं ख्यालात में गुम उसने बाबा के घर का दरवाज़ा बजा दिया। उस वक्त वो सब दिल से दुआ गो थे कि जल्द ही महविश और बाबा वापस आ जाएं। दूसरी तरफ सरदार जिन ने मन्नान को ये सज़ा सुनाई कि 10 दिन तक पूरे इलाके की सफाई सुथराई उसके ज़िम्मे है। अगर उसने काम में कोई कोताही की तो उसे बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर मन्नान जिन रो पड़ा, क्योंकि वह हद दर्जे कमज़ोर जिन था। उसकी कमज़ोरी के चर्चे दूर तक थे। कोई भी काम करना उसके लिए अजाब साबित होता। पूरे 10 दिन के लिए उसे ये सज़ा मिली तो वो सर पकड़ कर बैठ गया, मगर अब अफसोस के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। सरदार जिन ने बाबा को एक हीरे की अंगूठी तोहफे में दी और मन्नान की इस हरकत पर माफ़ी मांगी। साथ ही महविश के लिए जेवरात भी तोहफे में दिए। बाबा ये देखकर खुश हो गए, क्योंकि वो जेवरात इतने ज़्यादा थे कि मैं भी और महमूना के लिए बाकी की ज़िंदगी आसान हो सकती थी। धीरे धीरे रात सिरक रही थी। बाबा को वापस जाने की फ़िक्र लाहक थी, और जब उन्होंने जिन्नात के सरदार से अपने वापस जाने का जिक्र किया तो उसने हाथ के इशारे से उन्हें थोड़ी देर सब्र करने का कहा। दिन का उजाला फैलने लगा तो रफ्ता रफ्ता सारे मनाजिर जैसे गायब हो गए और भड़कती हुई आग की जगह खाली ज़मीन ने ले ली। जिन्नात के चेहरे मासूम होते ख़त्म हो गए। अंधेरे की जगह रोशनी ने ली। हर शे धुंधली होकर गायब हो चुकी थी। बाबा ने हैरान होकर इधर उधर देखा, जहाँ अब खाली मैदान पड़ा था और उनके पास उनके तोहफे रखे हुए थे, और महविश उनकी गोद में बेखबर सो रही थी। उन्हें यहाँ का रास्ता अच्छी तरह मालूम था। ये उनके घर से काफ़ी दूर मैदानी इलाका था, जिसके करीब ही कब्रिस्तान था। ये सोच कर कि कहीं वो किसी और मुसीबत में न गिरफ्तार हो जाए, वहाँ से वो उठ खड़े हुए और घर की सिमत चलना शुरू किया। सुबह 6 बजे का वक्त था। रास्ते सुनसान थे, सो वो जल्दी से कदम बढ़ाकर गली में दाखिल हुए। महमूना दरवाजे पर बैठी उनकी राह तक रही थी, जबकि निदा घर के अंदर साइड पर उसके बराबर बैठी थी। बाबा ने घर के अंदर दाखिल होकर पुरसुकून सोई महविश की
माँ की गोद में उसे दिया तो वो गले लगाकर उसे तड़प तड़प कर रोई। परेशानी की कोई बात नहीं है, महविश बिल्कुल ठीक है। एक मन्नान नाम का जिन इसके ऊपर आशिक था और इसे जादू के जोर पर अपनी दुनिया में लेकर चला गया था। उसके पीछे मैं भी वहां पहुंच गया और उसको वापस हासिल कर लिया। जिन्नात के सरदार ने मन्नान को सजा दी है और अब मुझे उम्मीद है वो दोबारा कभी इसके पीछे नहीं आएगा। ये जेवरात हमें सरदार जिन ने दिए हैं। एक छोटे से हादसे ने तुम्हारी जिंदगी को आसान कर दिया है मैमूना बेटी। अब तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो और हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। मैं काफ़ी थक गया हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। बाबा मुख्तसर सारी बात बताकर कमरे में सोने के लिए चले गए, जबकि महविश ने आंखें मलते हुए माँ से कहा, मामा हम यहाँ कब आए हैं? हिना कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। महविश ने इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैमूना और निदा ने उसे देखकर खुदा का शुक्र अदा किया कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक थी। मैमूना ने उसे गले से लगाया और निदा का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली गई। अगला पूरा दिन उसका एक शौक किसी कैफियत में गुजरा। वो बार बार महविश को गले लगाकर प्यार कर रही थी, जैसे उसे अपना कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। ये सच था कि दुनिया में एक वाहिद बेटी का रिश्ता ही था जिसके सहारे वो जी रही थी। बाकी तो हर रिश्ते ने मोड़ लिया, जैसे वो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। और सच तो ये है कि ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं जो दुनिया में तो हूँ मगर उनके होने का एहसास ही ना हो। मैमूना ने पहली फुर्सत में ही अपने किराए का घर खरीद कर उसे महविश के नाम कर दिया, ताकि खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो महविश कम अज़ कम उसके पास सर छुपाने का अपना एक ठिकाना हो। उस रात के बाद उसने अब तक ज़िंदगी की कोई भी रात सुकून से सोकर नहीं गुजारी थी। जैसे ही उसकी आंख लगती है तो वह एकदम से उठकर बैठ जाती। उसे ऐसे लगता जैसे महविश फिर कभी रात को उठकर घर से बाहर न निकल जाए। एक वहम था जो उसके दिल में घर कर चुका था और वक्त के साथ ये वहम दूर करने के बजाय बढ़ता ही चला गया। निदा उसे बहुत समझाती कि वो सिर्फ एक रात का किस्सा था, बाकी सारी ज़िंदगी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैमूना के लिए उस एक रात की याद को अपने दिल से मिटाना बहुत मुश्किल था। वो हमेशा इस कोशिश में नाकाम रही, मगर फिर भी वो खुश थी कि उसकी बेटी उसको वापस मिल गई है। वो सारी उम्र बाबा जी की एहसानमंद रही, जिन्होंने उसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाली थी और जिन्नात की दुनिया से महविश को वापस ले आए थे। इस वाक़े के 5 साल बाद बाबा जी का इंतकाल हो गया तो मैमूना को ऐसे लगा जैसे उसके सर से बाप का साया उठ गया हो। वो दहाड़े मार मार कर इस तरह रोई जैसे वो उनकी सगी बेटी हो। बाकी सबके लिए भी ये सब कुछ सहना मुश्किल था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जख्म भी मुंतमिल हो गया। मैमूना ने अपने छोटे से एक कमरे के घर को 2 मंजिला खूबसूरत सी इमारत में तब्दील कर लिया। निदा ने शोहर की तरक्की के बाद अपने घर को खूबसूरती से डेकोरेट कर लिया। हिना, दिल और महविश पढ़ाई के मैदान में अपनी मनाजिल तय करते रहे। आखिरकार उन्होंने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जवानी की हदूद में कदम रखा। हिना और अदील का रवैया उसके साथ इतना अच्छा था कि उसे कभी किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं हुई। वो कदम कदम पर उसकी रहनुमाई करने के लिए साथ होते। महविश को भी जहाँ ज़रूरत महसूस होती कि यहाँ उसे काम करना चाहिए, वो ज़रूर उनके काम आती है। निदा ने हिना का रिश्ता अपनी खालाजाद बहन के घर तय कर रखा था। उसने जैसे ही ग्रेजुएशन मुकम्मल की, उसकी शादी की तारीख लिख दी गई और एक सोगवार से शाम वो सबको उदास छोड़कर ससुराल रवाना हो गई। उसके जाने के बाद महविश बहुत उदास हो गई। हिना उसके लिए एक दोस्त ही नहीं बल्कि बहन होने की हैसियत रखती थी। एक दिन मैमूना के पास बड़ी बहन का फ़ोन आया, जिसने उसके घर का एड्रेस लिया और वहाँ आने की इत्तला दी। तो इतने साल बाद बहन की आमद का सुनकर मैमूना की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए और वो शिद्दत जज्बात से रो पड़ी। महविश ने माँ को गले लगाया और खाला की आमद पर घर की सफाई और खाना बनाने में लग गई। खाला घर में आई तो मैमूना जोश और मोहब्बत से बड़ी बहन से लिपट गई। बस कर दे मैमूना, इतने साल से बहन की याद ना आई तुझे और आखिरकार मैं खुद ही आ गई तो अब तू इस तरह कर रही है जैसे तुझे मेरी बड़ी याद सताती हो। बड़ी बाजी ने उसे अपने से दूर हटाते हुए कहा तो मैमूना शर्मिंदा हो गई और ये सोचकर कुछ कहने से गुरेज किया कि घर आए मेहमान की सिर्फ इज्जत की जा सकती है। उनके साथ उनका बेटा शहजाद भी था जो महविश से नजरें हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैमूना ने भांजी के सर पर हाथ रखा और उसे दुआ दी। खाना खाने के बाद खाला ने महविश के हाथ से बने लजीज खाने की दिल भरकर तारीफ की और बोली, मैमूना तुम्हारी बेटी तो बड़ी सलीकामंद है, आखिर अपनी खाला पर गई है।
قریب نہ بھی رہے مگر سچ یہ ہے کہ خون کا اس سے ضرور رنگ دکھاتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو کہ مہوش کے ہاتھ میں بالکل وہی ذائقہ جو میرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خیر سے کبھی تم نے کوئی اچھی چیز بنائی نہیں تھی، اب تمہاری بیٹی کے ہاتھ کا کھانا کھا کر دل خوش ہو گیا۔ میمونہ کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ وہ اس طنز بھری تعریف کے جواب میں کیا کہے۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی اور مزید بولی، میں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئی ہوں۔ میمونہ فوراً بولی، کیا بات ہے باجی؟ جو بھی بات ہے صاف صاف کہو۔ وہ لمبا سانس لے کر بولی، ہاں بھائی بتا رہی ہوں، اچھا موقع ہے، شہزاد پان لینے گیا ہے اور مہوش برتن دھو رہی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ شہزاد اور مہوش دونوں کا آپس میں رشتہ طے کر دیا جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے باجی، اپنا شہزاد کام کیا کرتا ہے؟ میمونہ نے پوچھا تو باجی نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور بولی، جھوٹ نہیں بولوں گی میمونہ، شہزاد ابھی کسی کام سے تو نہیں لگا، لیکن جب سر پر ذمہ داری پڑے گی تو خود بھی کام کرنے لگے گا۔ تھوڑا لاب والی طبیعت کا مالک ہے مگر میرا بیٹا بڑا ہی اچھا ہے، اور ویسے بھی تم دونوں ماں بیٹی نے کون سا اب تک بیٹھ کر کھایا ہے؟ خود ہی تو محنت مزدوری کرتی ہو اور اپنا گزارا چلاتی ہو۔ تم نے بھی تو شوہر کے بغیر ہی گزارا کیا ہے، مہوش بھی کر لے گی، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے، جس نے شروع سے ہی ماں کو محنت مزدوری کرتے دیکھا ہے۔ بہن کی نرالی منطق سن کر میمونہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بول پڑی، بس کر دے باجی، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جیسی زندگی ماں گزارے گی بیٹی کی زندگی بھی ویسے گزارنا فرض ہو جائے گا؟ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہمیشہ ایک اچھی زندگی کا خواب دیکھا ہے، میں اسے ایک ایسی تنہائی بھری زندگی بالکل نہیں دینا چاہتی جیسی میں نے گزاری ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا لمحے لمحے کا کرب اب تک محسوس ہوتا ہے۔ اب جب کہ میں کم عمر تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، بڑے بہن بھائیوں نے بھی کبھی بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کیا اور مجھے زندگی بھر دنیا کے سرد و گرم میں اکیلا چھوڑ دیا۔ مگر مجھے نہ تو کسی سے کوئی شکوہ ہے اور نہ ہی شکایت، لیکن میں اپنی بیٹی کی زندگی ایسے لوگوں میں بالکل برباد نہیں کروں گی جنہیں نہ تو رشتوں کی پہچان ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داری کا احساس۔ چھوٹی بہن کے منہ سے یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئی اور وہ بولی، لو جی کر لو گل، نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یتیم بانجی کے سر پر ہاتھ رکھوں گی، مگر اب تو میں خود بھی اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ جتنی بھولی دیکھنے میں تم نظر آتی ہو، اصل میں اتنی ہو نہیں۔ تمہاری بیٹی بھی تمہارے جیسی ہوگی، شکل سے معصوم اور اندر سے چالاک۔ انہوں نے تو چھوٹی بہن کا بھی لحاظ نہیں کیا اور کھری کھری سنا دی۔ اسی دن اپنے بیٹے کو لے کر واپس چلی گئی اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ تمہارا اور ہمارا جینا مرنا بالکل ختم، اب میں کسی کے آنے کی امید نہ رکھنا۔ میمونہ کو پہلے ہی کسی سے کوئی امید نہیں تھی، سو وہ خاموش ہو گئی اور اپنی بہن کو روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ ان کے جانے کے بعد میمونہ نے ندا کے گھر جا کر اسے پوری بات بتائی تو وہ بھی سر پکڑ کر اپنا بیٹھ گئی اور اسے شدید حیرت ہوئی کہ دنیا اتنے خود غرض اور مطلب پرست لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے فوراً میمونہ کو تسلی دی اور بولی، تم بالکل فکر مت کرو اور مہوش کے رشتے کی فکر سے تو مکمل طور پر آزاد ہو جاؤ، کیونکہ میں اسے اپنے عدیل کی دلہن بناؤں گی۔ کتنی بار تمہیں اشاروں میں کہہ چکی ہوں مگر شاید تم اب تک میرا ارادہ بھانپ نہیں سکتی ہو۔ ندا نے کہا تو میمونہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ بولی، کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جس تعلق کی انہوں نے برسوں آبیاری کی تھی وہ ایک مضبوط پیڑ بن چکا ہے جس کے سائے میں ان کے بچوں نے اب اپنی خوشیاں بھی منانی تھے۔ عدیل اور مہوش کو اس رشتے والی بات سے آگاہ کیا گیا تو دونوں نے ہی خوشی کا اظہار کیا، جس کے بعد دونوں کی مائیں شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ دونوں ہی گھروں میں جیسے خوشیوں کی بارات اتری تھی۔ شادی کے دن قریب آئے تو ہنا اپنے سامان سے لدی پھندی میکے میں بھائی اور اپنی عزیزت جان دوست کی شادی میں شرکت کے لیے آ گئی۔ وہ بھی اس رشتے سے بہت خوشی اور بڑھ چڑھ کر ہر تیاری میں حصہ لے رہی تھی۔ اور پھر دھوم دھام سے مہوش ایک دن دلہن کے روپ میں ماں کا گھر چھوڑ کر برابر والے گھر میں آ گئی تھی، جو کہ دراصل اس کے لیے اس کے اپنے گھر سے کم ہرگز بھی نہیں تھا۔ یوں اس طرح سے عدیل اور مہوش کی زندگی میں
زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ زندگی کے ہر موقع پر عدیل اور مہوش دونوں نے اپنے بابا کو بہت یاد کیا، ان کی کمی کو دل سے محسوس کیا تھا۔ آج بھی جب بابا کے جناتی دنیا میں رات گزارنے کی بات ہوتی ہے تو مہوش حیران ہو کر پوری بات سنتی ہے، اور جب اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ تھی تو اس بات پر تو وہ بالکل بھی یقین نہیں کرتے اور ماننے سے صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس کا حیران اور پریشان سا چہرہ دیکھ کر وہ سبھی ہنس پڑتے ہیں۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔